Hi guys, welcome to the Prep B. In this session, I'm going to cover the topic progression. So as you know, we already covered all topics from algebra. Okay, so the last topic which left is progression. So what exactly we are going to learn in progression? So basically, what is a progression first? So progression is nothing but a number of things in a series. Okay, when there are some numbers in a series, then we will say this is a progression. Might be the series going to increase, let's say 1 2 3 4 5, like this, or maybe are there are lots of different kind of series. Okay, so these are the things we are going to learn in the progression. So most of you have like known the title, let's say sequence and series. Okay, so आपने कहीं पढ़ा होगा तो ये चीज sequence and series. Okay, don't mind the spelling. Okay, sequence and series. So these are the things you have seen in YouTube or wherever you are learning this. So it is not different, both are same. Sequence and series कहो या फिर progression, both are the same. So what exactly I'm going to cover in this progression topic? So as per the CAT or other OMT's exams, they will test you mostly on this concept, that is AP, which is arithmetic progression. Okay, arithmetic progression. And then there was GP, that is geometric progression. Then there was HP, that is harmonic progression. Then there was AGP, which is nothing but arithmetic geometric progression. Okay, it is a combination of these two. That's why we will say AGP. And then there was some miscellaneous series. So we are going to learn all these things in progression topic. So hold your horses, we will cover everything. But because these sessions are recording, I haven't took this session live. So what I would recommend to you, once I will cover a basic. Okay, initially what I can do, I can simply cover the basic, then I will give you a question. Then you should take your time, take your 2 minutes, take a pause. Okay, just pause the video and try to solve this question. Once you solve the question, if you are able to solve, then great. Just see the answer and see my solution, what I did. Apart from this, you can, if you are not able to solve, you can watch the solution and then again try it. So this is what you can do when you are learning or watching this video. I hope it is clear. So let's start with the arithmetic progression. So here I am not going to tell you some kind of tricks, like most of the students are here maybe to see the tricks. So I will tell you the tricks when we are going to learn miscellaneous series or AGP, how to solve those kind of questions. But when it comes to arithmetic progression, I believe if you know the basic, that is more than enough to solve any question. So the basics of arithmetic progression are, what is arithmetic progression? That is the first question. So let's say if there are numbers like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on till the end. Okay. So this is the series given to you. Now they ask you, this was a AP series. So what if they haven't told you this is a AP series? What you can do? You can simply check if it is AP or not. So how you find it is AP or not? Simply check the difference. So you can see the difference between these two number is 1, this two number is 1, this two number is 1, okay, this two number is 1. So it is clear to me that the difference of all these terms, okay, difference between all like a two consecutive terms is 1. And if the difference is same for all values, then the series is called arithmetic progression, because they are, you can simply see यहाँ पे 1 था, it is increased by 1 और ये 2 बन गया, again it is increased by 1 and it is become 3, फिर ये increase हुआ 1 से फिर ये 4 बन गया. So this is a AP series. Okay, similarly you can see this was also AP series 2, 4, 6, 8, 10. You can see the difference here. It is 2, it is 2, it is 2. So these are the series which you can say AP series. Okay, there are lots of AP series, so you can simply check the difference is same or not. तो सबसे मेन चीज जो AP सीरीज का है, दैट इज टू चेक अ डिफरेंस. डिफरेंस चेक करके आपको पता चल जाए कि वो AP सीरीज है या नहीं है. सो हाउ यू कैन चेक डिफरेंस? लेट्स से 1 2 3 4 नहीं लेते, हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज नोन फॉर इट. A1, A2, A3, A4. What is A1? A1 is nothing but first term, second term till
ए एन बोल दो या फिर एन कह दो, वट एवर यू कैन से। तो सिमिलरली देर वॉज ऑल्सो द टर्म इज दैट इज, इसे हम ए वन को हम इस तरह से भी लिखते हैं टी वन, टी टू, टी थ्री। बात वही हो रही है, हम ए वन या फिर टी वन जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। सो टिल दी टी एन। स्कूल में आपने ये पढ़ा होगा, शायद कुछ बच्चों ने ये पढ़ा होगा, या आपने 10th 9th 10th में पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैथ्स अगर आपका था टिल द ग्रेजुएशन, देन आपको तो अच्छे से आता होगा ये। सो अगर मैं ए एन यूज कर रहा हूँ या फिर टी एन कह रहा हूँ, इट मीन सेम, दोनों की मैं एक ही की बात कर रहा हूँ। ए बोलो या फिर टी बोलो, बोथ आर द टर्म। ओके, दीज आर द टर्म्स। ए वन जो होता है या फिर टी वन, इसे हम क्या कहते हैं, दिस वी शुड से फर्स्ट टर्म। टी एन जो है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट लास्ट टर्म। ऑल्सो अगर कभी आपको सिर्फ ए लिखा हो, if it is given to you that is the value for a is something, तो हमेशा याद रखना है a is nothing but a1 which is nothing but t1, राइट। तो अगर आपको a भी बोला गया है तो a का मतलब वो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है। ये मत सोचना कि ये कौन सा टर्म है, a सिंपली फर्स्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म होगा दे विल मेंशन इधर दैट वाज an और मे बी दे विल से इट इज tn। ओके, सो दिस इज व्हाट दे शुड गिव यू। सो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेट्स सी now the basic formula to find any value from an, that is very important, an or tn, whatever you can write. So the value for tn is nothing but a plus n minus 1 into d. This is the one formula which is very important for any question you can solve through this formula. A क्या है यहाँ पे, this is the first term, n क्या है, total number of terms. Let's say अगर मैं बात कर रहा हूँ a20 की, तो n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा आपका 20। Okay, that is 20th term you can say. D is what, D is difference। difference कैसे निकालना है, difference is simple, D is nothing but that is a2 minus a1। remember हम हमेशा सेकेंड जो टर्म है, ओके ये वाला जो टर्म रहेगा आपका, हम उससे उसके पहले जो टर्म आया है उससे हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये टर्म जो रहेगा इससे हम माइनस करेंगे ये टर्म। ओके, तो सिंपली वैल्यू इज a2 minus a1, और यू कैन से a3 minus a2, or you can say a4 minus a3। so you will always get a same value। you can solve any of this, you can simply get, whenever you are finding a difference between two consecutive terms, you will get a same value when it is ap। जब ये ap होगा तब आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर नाउ। जैसे हमने a1 a2 की बात कर ली, वैसे क्या होता है, सम होता है। सम, लेट इफ आई आस्क यू कि आपको मैंने जैसे 10 टर्म दे दिया है, a1 a2 a3 a4 टिल a10। ओके, मैंने ऐसे आपको 10 टर्म्स दे दिया एंड आई आस्क यू कि आई नीड अ सम ऑफ दिस वैल्यू, तो आप क्या करोगे। चलिए यहाँ तो 10 टर्म है तो आप इजीली काउंट कर लोगे, चलो ये 10 है तो हम 10 को ऐड कर लेते हैं। व्हाट इफ द वैल्यू इज स्टिल A11, ये कंटिन्यू रहा और ये आपको कहा गया है A99, क्या आप 99 वैल्यूज को ऐड करोगे। हाँ आप ऐड कर सकते हो इफ यू हैव इनफ टाइम, बट इन कैट यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। इवन तो आपके पास कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल होगा फिर भी आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज टाइम वेस्ट। So for to solve this, we have a formula that is Sn। Sn means sum of n terms। तो यहाँ पे 99 की बात करते तो मैं क्या बोलूंगा, S99। Okay, so what is the formula for Sn? Sn is nothing but n by 2 2a plus n minus 1 into d। This is the general formula for Sn, that is n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ भी a जो है आपका, a is nothing but first term, n is nothing but your nth value of whatever term they ask you। अगर किसी ने 99 की बात किया तो आपका n क्या हो गया यहाँ पे, 99 हो जाएगा, राइट। d is a difference, how you can calculate difference, this is the formula। hope it is clear। similarly Sn का और एक फॉर्मूला है, अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे आया, बट यस यू कैन लर्न इट, समझ लो। n by 2, दिस इज नथिंग बट, ओके चलो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास डायरेक्टली गिवन है आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये कैसे आया है,
कहीं से नहीं, यहीं से आई। देख लो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दैट इज 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मैं a को अलग कर दूँ इस तरह से बन जा रहा है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आई जस्ट टोल्ड यू ये वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी होगी, टी एन की हो गई, और ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। दैट इज वाई मैं यहाँ पे लिख दिया a प्लस टी एन। सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाई टू इज कॉमन वहाँ पे। ठीक है, तो होप इट इज क्लियर। ऑल्सो यहाँ तक तो ठीक है, एस एन का फॉर्मूला भी समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला है जो कि हम आगे पढ़ेंगे एस एन का, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बिकॉज वी लर्न अ बेसिक ऑफ एपी, देखो इससे बाहर कुछ नहीं है एपी में। आप सोचोगे कि एपी में और क्या पढ़ाऊंगा मैं, कुछ ट्रिक्स है, टेक्निक्स है। टू बी ऑनेस्ट, कैट इज नॉट गोइंग टू टेस्ट दैट मच ट्रिक्स हियर। वो एजीपी या फिर एक मिसलेनियस सीरीज जब बनाते तो आपका वो बहुत सी चीज टेस्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट एपी के क्वेश्चन है तो आई वुड रिकमेंड दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, सीधा फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट आंसर इजीली। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यस देयर वाज सम ट्रिक्स, देयर वर मतलब, बट टू बी ऑनेस्ट इतना याद नहीं रहता है। एट द टाइम ऑफ द पेपर यू डोंट रिमेंबर कि यार इसमें क्या ट्रिक्स लगाओ क्या लगाओ। बट अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है यू कैन सिंपली सॉल्व इट इजीली। So these are the things you should remember. Let's come to the first question. Let's see how many of you are able to solve this using the trick, not trick, using the basics. So the question is, let's say if third term of an AP is 49 and 23rd term is okay, and 23rd term is 329, and I ask you find 53rd term. So this is your question. What exactly question are given to you? There is third term is given to you. Okay, it means a3 is given to you, that is 49, and 23rd term is given to you, a23, which is 329, and they asked you to find a53. So have a try and do let me know what should be your answer. I hope you guys solved the question. Let's see what is the solution. So basically you can use a tricks. There are some tricks like you can simply find the difference and blah blah blah. I won't going to use any kind of trick. I could simply use the simple formulas. So a23, if I just see the basic, what is the term an? I have formula for an, that is a plus n minus 1 into d, right? So because it is given to me for 823, sorry, a3, so for a3 what it will become, that is a plus 3 minus 1 into d, which is equal to 49. If I solve it further, what I will get, a plus 2d is equal to 49. Similarly, when I'm going to solve this one, what I will get, a plus n minus 1, what is the n here, it is 23, that is 23 minus 1 into d, which is equal to 329. When I solve it further, I will get a plus 22d is equal to 329. Now you can see these are the two equations, and you can easily solve linear equation with two variables, and you have learned it in linear equations how to solve this. If you haven't know how to solve this, you can simply check out the linear equation session. We have took all the session. You will find a playlist. You can see the I button and everything is there. So how to solve this, let's see. You can see I would simply subtract these equation from this one. Okay, so let's say this should be equation 1 and this should be equation 2. So I could simply what do, equation 2 minus 1. By solving this, what I will get, a will get cancelled, and because it is 22d, it will become, when I minus 2d, it will become 20d, which is equal to here 329 minus 49. Okay, so 329 minus 49 is nothing but 280. Is it correct? सही किया ना?
हाँ सही तो किया है. Okay, then what you can simply see here we'll get the value for d, that is nothing but 14. तो difference मिल गया हमें 14. What left? Now I have to find value for a. So I could simply put 14 here and I will get the value for a. So I know a plus 14 into 2, that is 28, is equal to 49. Simply subtract for 28 from 49, so you will get 21, your answer. तो यहाँ से a मिल गया, यहाँ से d मिल गया. I could simply क्या होगा? तो a53 is nothing but a plus 53 minus 1, that is 52, d. a की वैल्यू मेरे पास है, that is 21 plus 52 into d की वैल्यू मेरे पास आ गई 14. When you solve it simply, what you will get, that is 21 plus 52 into 14. So 52 into 14 कर ले तो ये हो जाएगा, okay, it will become 728 plus 21, 749. So you can get answer 749. I hope you understood कैसे solve करना है ये questions. तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कैट नहीं पूछता है, बहुत रेयरली पूछता है. बट यस, अगर आपको किसी एपी में या फिर जीपी में पूछ रहा है अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो मोस्टली आपको इस तरह से सॉल्व करना है. हम देखेंगे बहुत सारे टाइप्स की कैसे कौन से क्वेश्चन कैसे टैकल करना, बट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल अप्रोच से जाओ. थोड़ा टाइम लगेगा, इट टुक योर 30 सेकंड मोर, बट यस यू विल गेट योर आंसर. सो आई होप इट इज क्लियर. अगेन in the same question, if I ask you to find, okay, this is the same question and I asked you to find S30. मैंने क्या पूछा आपको? S30 बताओ. और हो सकता है कभी आपको गिवन हो कि आपको 53 टर्म नहीं पूछे और सीधा S30 पूछ ले, तो क्या करोगे? तो इन दैट केस यहाँ तक तो अप्रोच सेम है ना, ए और डी तो सेम आपको निकालना पड़ेगा इसी अप्रोच में, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, राइट? आपको करना क्या है अब, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, अगर आपको एस की बात की सिर्फ उसने S30 की, यू कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला फॉर SN. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर SN? द फॉर्मूला फॉर SN इज n/2 2a plus n-1 into d. अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है तो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? अगर मैं S30 की बात करूँ तो S30 में फर्स्ट टर्म क्या होगा? ऑब्वियसली a1 होगा फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म क्या होगा? a30 शुड बी लास्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका होगा फर्स्ट टर्म, राइट? बट अगर आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म नहीं है गिवन, तो आप इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर लो. सो n is 30/2, 2 time of a. What is a? A is nothing but 21 plus n-1. 30 minus 1, that is 29, into d. What is d? D is 14. When you solve this, you will get the answer. ये आ जाएगा आपका 15. 2 into 21, that is 42, plus 29 into 14. So 29 into 14, it will become nothing but 406. Yeah, 406. Add this, what you will get? When you add 42, it will become 448, and 448 into 15. Okay, so 448 into 15. So it will become your 15 8s are, okay, I could simply use calculator here. 6720. Yeah, this is the answer. So I hope it is clear how to solve this kind of question. And अगर यहाँ पे डाउट है किसी को तो कमेंट में पूछ लो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. बाकी इजी था, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसे. लेट्स द सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन, और एक कैट का क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, सो दैट आपको समझ में आए कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. द कैट क्वेश्चन इज, ओके, सो कैट 2003 का क्वेश्चन है. लेट्स सी द क्वेश्चन. So read the question. The question given to you: the sum of third and 15th element of an AP. So third and 15th element of AP, that is
I would say A3 plus A15. This is what they have given. Sum is equal to the sum of 6th, 11th and 13th element. It means sum of A6 plus A11 plus A13 of the progression. Then which of the element of the series should necessarily be equal to 0? So this is the CAT 2003 paper. Okay. And this is the question they have given to them. तो करना क्या यहाँ पे, आपको ये वैल्यू पता है, आपको मतलब एक इक्वेशन काइंड ऑफ थिंग दिया है, A3 प्लस A15 इज इक्वल टू A6 प्लस A11 प्लस A13 एंड आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से वैल्यू की, लेट्स से द फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म, लेट्स से A1 हो गया, ये A9 हो गया या फिर A12, इनमें से किसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है. यू हैव टू चेक दिस. तो अभी आपको अगर ये भी चेक करना है तो आप कैसे निकालोगे, यू मस्ट नो द ए और डिफरेंस. जब तक आपको ए और डी नहीं पता चलेगा तब तक आप चेक कैसे कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, राइट. सो यू हैव टू फाइंड दिस ए एंड डी. ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि इक्वल टू मुझे जीरो बनाना है, इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, क्या मुझे ए एन की वैल्यू नहीं मिली है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू जीरो. ए एन मीन्स सीरीज में ए एन मत मानो, एन तो मुझे निकालना है यहाँ पे. ओके तो इसकी जो वैल्यू है, वॉट एवर द वैल्यू इज, ये जीरो है. हो सकता है ए वन जीरो, तो एन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, वन हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज वॉट आई एम राइटिंग हियर. मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप बाद में भी इसे सोच सकते हैं, बट पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो इट इज गिवन टू मी A3 प्लस A15. So when you solve this, A3 is nothing but I could simply write in the formula format में A plus n minus 1, n minus 1 मतलब 3 minus 1, that is 2D plus इसका अगर मैं ओपन करूँ तो this will become A plus 14D, which is nothing but A plus 5D plus A plus 10D plus A plus, इसे जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 12D. ओके, फ्रॉम हियर इफ आई कैंसल दिस, ये ऐसे कैंसल, दिस ए कैंसल, 2D प्लस 14D दैट विल बी 16D. 16D की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से 14D कैंसिल कर देता हूँ 10D से, तो व्हाट आई लेफ्ट विथ 4D. 4D यहाँ पे 5 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, तो व्हाट आई लेफ्ट 1 मोर कैंसिल यहाँ से करना होगा. तो एट द एंड आई लेफ्ट विथ दिस शुड बी इक्वल टू 0, A प्लस 11D. ओके, सो A प्लस 11D द वैल्यू इज इक्वल टू 0. A प्लस 11D की वैल्यू डायरेक्टली 0 मिल गई मुझे यहाँ पे. A प्लस 11D की वैल्यू अगर 0 है, व्हाट इट मीन, अगर आप सही से देखे A प्लस 11 अगर D अगर है, तो इसे अगर मैं कहूँ दिस वैल्यू इज नथिंग बट n माइनस वन होगा, उसकी वैल्यू ही 11 है. n माइनस वन की वैल्यू क्या है, 11, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएंगी, n की वैल्यू इज नथिंग बट 12. तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली फॉर्मेट दिख गया, इट इज A प्लस 12 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज नथिंग बट मैं बोल सकता हूँ A12 विच इज इक्वल टू 0. तो मुझे कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. आई directly got my answer, that is A12 is 0. It means the 12th term is 0. So answer is option C. तो अगर आप बेसिक से ही जाओगे, अगर यहाँ पे आप सोचने लगते कि ट्रिक क्या लगाओ, कैसे करूँ, तो टाइम वेस्ट हो जाता और आप सॉल्व भी नहीं कर पाते. बट यू कैन सी by solving using a basic, if you know the basic, you can simply solve it easily, right? So yeah, this is a CAT question. Let's come to the next question. Now in this question it is given that if the seventh term of an AP is 17, okay, so they have given to us that is A7, okay, A7 which is equal to 17, then find the sum of the first 13 terms of the AP, and they asked you that is sum of first 13 terms of AP. So you can see यार लास्ट क्वेश्चन तक तो ठीक था कि दो वैल्यूज थे, तो हमने दो में से एक निकाल लिया, इट इज इजी टू अस. बट हाउ शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, कैसे सॉल्व करना है. So that's why I told you there was one more formula for Sn, which I haven't told you earlier, but this is the formula. It is n by 2, or sorry, not n by 2, n into average, n into
average of, you can say middle term or whatever, average, just know for average. Okay, n into average, so number of term into average, you will get the sum of n terms. Okay, so to understand it in a broadly or in a better manner, what I can recommend you, let's see, if there are three numbers, that is 2, 4 and 6, you can see these are all are in AP, इनका डिफरेंस चेक कर लो, दो दो मिलेगा तो AP में है ये। जब मैं इसका और इसका एवरेज निकालूंगा, इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकालूंगा, तो जो मिडिल टर्म है वो हमेशा मुझे मिलेगा। और यू कैन से व्हेन यू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस थ्री नंबर, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज इसका सिंपल दिया आपको मिल जाएगा, दैट इज 4। और यू व्हाट यू कैन डू, अब मुझे पता है यहाँ पे तीन नंबर है तो मैं तीनों को ऐड करके सॉल्व कर लूंगा। ओके, to find the average here, what I can simply do, I could simply add 2 plus 4 plus 6 and divided by number of term, that is 1 2 3। तो यहाँ से मुझे एवरेज मिल जाएगा, that is 4। what if I told you there was 100 terms, अगेन 100 की बात होगी तो सारे तो ऐड करते नहीं बैठोगे, सारे आपने ऐड किया, दैट इज A1 प्लस A2 टिल 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 प्लस A100 तक ऐड किया, फिर डिवाइड किया आपने 100 से, तो इतना मेहनत कौन करे, राइट। तो हमेशा याद रखना, एवरेज की जब भी बात हो रही हो एपी सीरीज में, ओके रिमेंबर मैं एपी के लिए बता रहा हूँ, हर जगह मत लगा देना। तो एपी में जब हम एवरेज की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2 4 6 की जब मैं बात कर रहा हूँ, सो जो एवरेज है वो हमेशा मिडिल टर्म है। यू कैन सी एवरेज क्या है 4। तो ऑलवेज रिमेंबर इन एपी सीरीज जो एवरेज रहेगा वो कैसा रहेगा, मिडिल टर्म रहेगा एवरेज। ओके, जो भी आपका मिडिल टर्म रहेगा दैट शुड बी इज इक्विवेलेंट टू योर एवरेज, दिस इज नथिंग बट योर एवरेज। और अगर मिडिल टर्म नहीं है, लेट्स से यहाँ पे 3 है तो मिडिल टर्म मुझे मिल गया। व्हाट इफ अगर 4 नंबर है 2 4 6 8, इन दिस केस एवरेज क्या होगा, तो इस केस में एवरेज क्या होगा आप कैसे चेक करना है। अब इस केस में मिडिल टर्म आपको नहीं मिल रहा, बिकॉज जब नंबर ऑड थे, व्हेन देयर इज ऑड नंबर्स यू कैन इजीली फाइंड द मिडिल टर्म, बट हियर यू कैन सी द ऑड नंबर्स तो है नहीं यहाँ पे, तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, तो सिंपली चेक द मिडिल टू टर्म्स। जब भी आपको वैल्यूज, जब जो आपकी सीरीज है वहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपको मिडिल टू टर्म्स को आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। मिडिल टू टर्म का एवरेज दैट इज 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 5। सो हियर द एवरेज ऑफ दिस लाइक सीरीज वाज 5। आप बोलेंगे हमें तो विश्वास नहीं हो रहा आप पे, तो एक काम कर लो, सबको ऐड कर लो, 4 प्लस 2 दैट इज 6, 6 प्लस 6 दैट इज 12, 12 प्लस 8 दैट इज 20, 20 अपॉन हाउ मेनी टर्म इज देयर 1 2 3 4, 4 टर्म है, डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आ गई दैट इज 5, सो एवरेज इज 5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एवरेज। बट ये तो लिमिटेड केस हो गया, ये तो हो गया लिमिटेड केस के लिए कि हमें 10-12 नंबर ऐसे है गिवन है तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। अगर मुझे 100 टर्म्स गिवन है और मुझे पूछा कि भाई एवरेज बताओ, ठीक है, अगर 100 टर्म्स गिवन है तो आप तो इजीली एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज क्या करना है, मिडिल टर्म ढूंढ लो उसमें जो भी है। ठीक है, अगर मैं A100 की बात करूँ तो टर्म्स कैसे है, यू कैन सी इवन नंबर टर्म्स है। इवन नंबर टर्म्स से मतलब मिडिल टू वैल्यूज कैसे होंगे, मेरे एवरेज, इनका जो एवरेज आएगा वही मेरे टोटल पूरे सीरीज का एवरेज आएगा। तो मिडिल टू वैल्यूज कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, व्हाट इज द मिडिल टू वैल्यूज, दैट इज नथिंग बट A51, सॉरी A50 कॉमा A51, दीज आर द टू वैल्यूज विच इज द मिडिल वैल्यूज। तो इनका एवरेज निकाल दोगे तो आपको पूरी सीरीज का एवरेज मिल जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और और हमेशा याद रखना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका जो भी एवरेज निकलेगा ये हमेशा इसके एवरेज से सेम रहेगा, या फिर यहाँ पे कोई और भी टर्म, लेट्स से लास्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड टर्म, इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो हमेशा आपको सेम मिलेगा। चलिए ये भी समझ लो कैसे, देख लो, इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूंगा, मैं 7-8 नंबर ले लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। लेट्स सी, हियर इज द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो 11 ले लिया मैंने, 7-8 बोल के 11 ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे 11 नंबर से, तो आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत ईजी है, एवरेज बता दूंगा, ये तो 6, यही तो एवरेज, देख लो, राइट। यहाँ तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि यहाँ तो समझ गया, बट बड़े नंबर में क्या करोगे, तो यहाँ सिंपली देखना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका जो एवरेज रहेगा, यू कैन सी द एवरेज ऑफ दिस टू टर्म इज 6, 11 प्लस 1 दैट इज 12, 12 अपॉन 2 इज 6, हमेशा एवरेज सेम आ रहा। देख लो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड टर्म
और लास्ट सेकंड टर्म. When you solve these two, 10 plus 2, that is 12, 12 by 2, again average is 6. 13 and 9, sorry 3 and 9, again average is 6. You can see जो मैं वैल्यूज के एवरेज निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म का अगर एवरेज निकालू तो उसका एवरेज भी सेम आ रहा है, जो कि एवरेज वैल्यू है. सिमिलरली सेकंड टर्म एंड लास्ट सेकंड टर्म का अगर मैं वैल्यू से एवरेज निकालू तो यहाँ भी वैल्यू सेम है. अगर मैं फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म से एवरेज निकालू, मतलब 4 और 8 इन दोनों से, फोर्थ टर्म एंड लास्ट फोर्थ टर्म इन दोनों का एवरेज निकालू तो अगेन वैल्यू सेम आ जाएगा, इन दोनों का भी वैल्यू सेम आ जाएगा. तो आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको बोल दूं कि देयर वाज A7, ठीक है, A7 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से A7 कोई कोई एक वैल्यू है, तो A7 किसी न किसी का तो एवरेज होगा ना. A7 किसका एवरेज है? अगर यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ, इसकी 7 को देखो सिर्फ, ठीक है. और यू कैन से, चलो और इसे बेटर कर देते हैं, इस तरह से समझो. लेट्स से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13. Okay, so I hope it is enough 13 तक, ठीक है. A13. अब यहाँ देखो, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे 13 नंबर ऑफ टर्म है, ऑड टर्म्स है, दिख रहा है ऑड टर्म्स. एवरेज डायरेक्टली मिल गया यहाँ पे, ये जो मिडल वैल्यू होगा यही एवरेज होगा. ऑड टर्म में जो भी मिडल वैल्यू रहता है वही एवरेज रहता है. यू कैन सी A7 इज द मिडल वैल्यू, तो ऑब्वियसली यही एवरेज होगा. और यू कैन सिंपली चेक, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये एवरेज है या नहीं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख लो, इनका एवरेज निकाल दो, तब बोलोगे यहाँ पे कैसे एवरेज निकाले, तो ए के टर्म में. तो कुछ मत करो, ये देखो A1 है, यहाँ पे 13 है, तो 1 प्लस 13, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 13 टर्म, दैट इज 14. 14 बाई 2, इसका एवरेज क्या है? सेवेंथ टर्म. तो इट मीन्स जो सेवेंथ टर्म होगा वही जो आएंगे इनके एवरेज आएंगे. ओके, सो एवरेज ऑफ दिस सीरीज अभी मैंने बताया था, सिंपली यू कैन से A7. तो बिकॉज मुझे क्वेश्चन पूछा है A7 के लिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ. एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एवरेज. मुझे पूछा क्या, S13. S13 पूछा है, एन मुझे कितना मिल गया, एन कितना है, जितना नंबर ऑफ यहाँ पे पूछा है, तो 13 हो जाएगा, इनटू एवरेज. व्हाट इज एवरेज? एवरेज इस केस में क्या हो जाएगा, A7 शुड बी योर एवरेज. A7 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 17. तो आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 13 इंटू 17. So you can easily solve this in this manner, that is 13 into 17 is nothing but, okay, so 13 tens are 130 and 13 sevens are 221. 221 is the answer. तो होप यू गॉट द सॉल्यूशन. कैसे करना है तो हमेशा याद रखना, अगर आपको सिर्फ एक टर्म गिवन है, इसमें इट मीन्स आपको वहाँ पे हमेशा ये वैल्यू यूज करना है, दैट इज SN इज नथिंग बट n इंटू एवरेज. एवरेज किसका समझ जाओगे, जो गिवन है वही एवरेज होगा, बट हो सकता है कि वो ट्विस्ट कर दे, कुछ कुछ घुमा के पूछ ले, तो एक बार चेक करना कि एवरेज है या नहीं. कैसे चेक करना है, 13 टर्म्स पूछा तो 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 7 अपने आप आ जाएगा. होप यू गॉट दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. So in this question it is given that the sum of 23 terms of AP is 460. Then find the 12th term. So sum of given है, मतलब as 23 we have, they have given to us, which is equal to 460. अब ऐसे क्वेश्चन में भी सॉल्व कैसे करना है, सबसे बेसिक लॉजिक अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था हियर की, दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म, लाइक लेट्स से फर्स्ट एंड 13 टर्म, ये जो है इसका एवरेज जो मिलेगा वो मिडिल टर्म मिलता है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 23rd टर्म का सम है, अगर मैं इसके एवरेज की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म हो गया या एंड 23 टर्म, इन दोनों का जो मेरा एवरेज मिलेगा ये किसके बराबर होगा, आई जस्ट टोल्ड यू किसके बराबर होगा, 12th टर्म के बराबर, राइट. तो अगर ये 12th टर्म के बराबर है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूँ, लेट्स से अगर मैं 21st एंड 20th टर्म का एवरेज निकालूँ, 12th टर्म मिल जाएगा. बट मैं इतना कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे. क्यों नहीं करूंगा, देखो मुझे यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली कि ये 12th टर्म जो ये मिडिल टर्म है, ये 12th टर्म क्या है, मिडिल टर्म. तो मुझे सम का जो फॉर्मूला था, सम इज नथिंग बट एन इंटू एवरेज था, राइट. इस केस में एवरेज क्या हो जाएगा, इस केस में एवरेज जो होगा ये मेरा 12th टर्म हो जाएगा, राइट. ये मेरा कैसा होगा, 12th टर्म हो जाएगा.
तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ S23, अगर मैं बात करूँ S23 का, that is S23 is equal to what is n? N is nothing but 23 into average. Average of means what? 12th term. मुझे यही निकालना है, राइट? मुझे यही निकालना है। S23 it is given to me, that is 640 is nothing but 23 into T12. Directly cancel it, so you will left with the T12 should be 2s are, that is 46 and 0 as it is. So T12 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 20. So this is what you can solve this kind of question अगर आपको ऐसे given है कि the sum of the one term is this and you have to find the next term. तो देखना मोस्ट ऑफ द केसेस में S12 या जो भी रहेगा वो आपको एवरेज ही गिवन रहेगा। अगर एवरेज नहीं है तो क्या करें, ये तो मैंने बता दिया। अब इन केस अगर वो एवरेज ना हो तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? तो देखो उस केस में क्या करना है आपको, सिंपल अप्रोच से जाना है। सिंपल अप्रोच दैट इज, इसको फॉर्मूले को ओपन करो, दैट इज एस। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। हियर n इज 23 है, तो 23/2 2a प्लस n-1। तो n क्या है 23, 23 माइनस वन दैट इज 22d इज इक्वल टू 460। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे, यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा बहुत करोगे, तो आपका ये जो भी है ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इन दिस केस यहाँ पे देख लो आप, डायरेक्टली 12 आपको दिख जाएगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, देखो ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का। इफ आई सिंपली कॉमन टेक 2 एज अ कॉमन, तो आई विल लेफ्ट विथ a प्लस 11d is nothing but 460 and this is nothing but 23/2 into this value cancel। ओके, ये टर्म डायरेक्टली आपको दिख रहा है। इसको अगर मैं देखा जाए तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट T12 और A12 वॉट एवर यू कैन से। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपके आगे, सिंपली कट कर दो यहाँ पे, कैंसिल 23 इंटू दिस, यू विल एट द एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। तो मैंने दोनों क्यों बताया, तो हो सकता है आपको एवरेज वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए या फिर आप भूल जाओ, बट आप इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका T12 का वैल्यू आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। एंड रिमेंबर, जब भी अगर आपको सम गिवन है और सिंगल सम गिवन है और आपको दे आस्क्ड यू अ सिंगल टर्म, इट मींस इट इज क्लियर कि आप उसे इजीली निकाल सकते हो एवरेज के मेथड से होने वाला है। होप यू गॉट इट। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ लूँ, कैन यू एबल टू फाइंड 15th टर्म ऑफ दिस एपी, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सोच रहे हो कि आप निकाल दोगे ऐसे टर्म, तो द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। if they haven't given you any additional information about, let's say if they have given you some other terms, उन्होंने अगर आपको बोल दिया कि चलो ये निकाल लो, ठीक है, मतलब आपको सम गिवन है एंड समथिंग दे विल गिव यू, लेट्स से A4, अगर ऐसा कुछ गिवन है देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट अगर ये गिवन नहीं है तो आपको ऐसे अगर पूछ लिया कोई और टर्म एवरेज के अलावा, अगर कोई आपको सम गिवन है, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 100% श्योरिटी है कि आपको अगर सिंगल टर्म गिवन है, सम ऑफ द सिंगल टर्म, देन दे विल डेफिनेटली आस्क यू एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, जो एवरेज टर्म, जो भी एवरेज नंबर होगा, मिडल नंबर, वो इसका ही आंसर आपको पूछ रहे होंगे। ओके, हो सकता है कभी कभी आपको दे, लेट से, हो सकता है आपको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यू हैव सम ऑफ द 22 टर्म्स, इन दिस केस वो आपको क्या पूछेंगे, इस केस में आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ द मिडल टू टर्म। ओके, दे विल आस्क यू मिडल टू टर्म, जो भी उसका मिडल टू टर्म है उसके सम आपको पूछ सकते हो वो। ठीक है, दिस इज व्हाट दे विल आस्क यू। बट अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछ लो कि 15th टर्म बताओ, तो आंसर इज CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज आई हैवंट गिवन यू एडिशन ऑफ additional information. If I will give you additional information, then only you are able to solve this question. By the way, आप ट्राई कर सकते हो, आप कमेंट में बताओ कि यू आर एबल टू फाइंड दिस टर्म और नॉट। अगर आप कर लिए हो तो यार नेक्स्ट लेवल बताओ मुझे कैसे सॉल्व करते हो, बट द आंसर इज CBD। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। If the sum of first seven terms of AP is equal to sum of eight terms of the same AP, what is the sum of first 15 terms of the same AP? तो here the question is, जब आपको पूछ क्या रहा है, मतलब आपको गिवन क्या है, sum of seven terms is equal to sum of eight terms, and they will ask you the sum of 15 terms. This is what the question is। ठीक है, देखो अगर सम लॉजिकली करते सबसे पहले तो, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो कि आपने पढ़ा भी होगा शायद या फिर कहीं देखा होगा। लॉजिकली समझो,
अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की कि A1 से लेके A1 A2 A3 वट एवर थिंग इज, इसका जो सम है टिल A7, ये इक्वल है A8 के। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि A8 की वैल्यू क्या होंगी, 0। A8 की वैल्यू क्या आ गई होंगी, 0। तो अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इट मीन्स A8 की जो भी वैल्यू होगी उसके बाद जो आएगा वो नेगेटिव होगा। हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये 0 आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चालू हो जाए। तो बोथ आर दी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। समझ रहे हो बात को? चलो ऐसे समझो, अगर मैं कह रहा हूँ A3 इज इक्वल टू A4, ठीक है। अब A3 क्या है, मैं बता, सॉरी, नॉट A3, S3 इज इक्वल टू S4। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि S3 जो है S4 के इक्वल है, तो S3 अगर S4 के इक्वल है मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा A4। ओके, तो ये A3 का जो सम है वो, मतलब S3 जो है ये इक्वल टू S4 के। इट मीन्स ये तीन की जो वैल्यू है वही तो यहाँ भी आ चुका है ऑलरेडी, मतलब इसका वैल्यू तो 0 ही हुआ होगा ना, राइट। अगर मैं इसको बोल दिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, टोटल वैल्यू कितनी बन गई, टोटल वैल्यू बन गई 6 की। तो अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी भी 6 है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अब बिकॉज ये पॉजिटिव इंक्रीज था, ऐसा नहीं होगा, हाइपोथेटिकल मान के चल लो, ये A1 A2 तो नहीं होगा क्योंकि ये AP है, तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 0 होगा। इसके बाद क्या आना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस जो भी होगा वही नेक्स्ट नंबर होगा। इसमें ऐड कर दो डिफरेंस, तो विल गेट -1, -2, -3। ओके, तो ये कहाँ तक आ गया, ये हो गया A5, A6, A7। ना अगर मैं पूछ रहा हूँ कि S15 का सम, तो इस केस में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ आपको S7 का सम बताओ, व्हाट इज द S7। तो अगर आप इन सबको ऐड कर दो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, आपकी वैल्यू 0 नहीं आ जाएंगी। ये +1 से -1 कैंसिल, ये +2 से -2 कैंसिल, ये +3 से -3 कैंसिल, एट द एंड विल लेफ्ट विथ 0, राइट। और अगर आप लॉजिकली भी समझो, जो हमारा फॉर्मूला है n इंटू एवरेज, क्योंकि मिडिल टर्म एवरेज बन जा रहा है, तो एवरेज क्या है, एवरेज की वैल्यू 0 है। n कितना भी हो, n होगा 7, 7 इंटू 0 डेट विल ऑल्सो बिकम 0। तो ये था लॉजिक, ये था लॉजिक। वो आप जो पढ़ते हो आपने बहुत बार देखा भी होगा हर जगह, कहीं भी अगर आपको ऐसे गिवन हो, जो कि आप समझ लो बेसिक है ये, Sn इज इक्वल टू Sm इफ इट इज गिवन टू यू, एंड दे विल आस्क यू Sn प्लस m, यू कैन सी 7 + 8, यही आपको पूछा है 15, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट्स इट। बस यही है। अगर आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको कैट में मिल जाए या फिर किसी और एग्जाम में, ओएमटीज में, तो आपको सिंपली आप चेक करना है Sn इज इक्वल टू Sm है, और आपको पूछा है n प्लस m, दैट इज सम ऑफ n प्लस m, तो सिंपली द आंसर इज 0, दैट्स इट। एंड यही आपने ट्रिक्स भी कहीं जगह पढ़ा हुआ, बहुत जगह तो ये गिवन होगा, दिस इज योर आंसर। होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर, कि अगर ऐसा है तो ऐसा आपको डायरेक्टली 0 मार्क करना है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन, if the sum of first 9 terms of AP is 12, it is given to us, मतलब S12, S9 की वैल्यू हमें गिवन है, that is equal to 12, and sum of first 12 terms of an same AP is 9, मतलब इसी AP का जब 12 टर्म को हम काउंट कर रहे हैं, S12 तक जा रहे हैं हम, मतलब A12 तक जा रहे हैं, तो हमें जो सम है इज इक्वल टू 9। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डिक्रीज हो गया, राइट। अगेन व्हाट दे आस्क्ड यू, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सेम AP, आपको पूछा क्या गया है, S21, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। अब आप सोचोगे कि यार सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने बताया था, Sn इज इक्वल टू Sm, देन Sn+m इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। और यहाँ पे सम भी गलती से या फिर यू कैन से उन्होंने ऐसा आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है कि इसका सम भी वही आ रहा है 21, राइट। बट यू कैन सी, क्या ये दोनों इक्वल है, इस केस में क्या दोनों इक्वल है, नो। यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है ना यहाँ पे। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो यार अब दो अप्रोच है आपके पास। या तो एकदम प्योर सिंपल मेथड अप्लाई करो, जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली, बिकॉज आई डोंट लाइक कि यहाँ पे कोई ट्रिक्स लगा के यूज करो, बट फिर भी समझो, अगर ट्रिक से भी आपको समझना है तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है।
अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताया कि A1 A2 A3 till something something around A9, then A10, then A11, then A12, then again go so on and here we'll get A21. ये जो वैल्यू है इसकी जो एवरेज आएंगी, व्हाट शुड बी देयर एवरेज? इसका जो एवरेज आना चाहिए, ये आना चाहिए दैट इज 10। मतलब मैंने एक नंबर ले रहा हूँ, जो भी A10 आएगा वही इसका एवरेज होगा। हियर इज द वैल्यू A10। अगर मैं A10 निकाल दूं तो मैं आराम से इजीली सॉल्व कर पाऊंगा ना ये क्वेश्चन। S21, यस और नो? आई बिलीव यू गॉट दिस पॉइंट। तो S21 जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? n इंटू एवरेज अगर मैं मानूं, n मेरा क्या है? 21। n क्या है मेरा? डेट इज, ओके पहले फॉर्मूला लिख लो तो आप बोलोगे ये क्या लिख रहा है। तो सम ऑफ n टर्म्स व्हेन इट कम टू एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एवरेज। तो यहाँ पे s जब मैं 21 की बात कर रहा हूँ तो n क्या हो जाएगा? 21। एवरेज क्या है यहाँ पे? एवरेज मेरा A10 है, राइट? अब आप देखो यहाँ पे A1 से लेके A9 तक जो सम है वो 12 है, बट वही सम A1 से A12 तक, दैट शुड बी अ 9। इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज कुछ आ रही है, कुछ तो नेगेटिव होगा। आई डोंट नो क्या नेगेटिव है, बट कुछ तो ये वैल्यूज नेगेटिव में जा रहा है। बिकॉज ये नेगेटिव में जा रहा है इसलिए यहाँ पे जो सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है? छोटा होते जा रहा है, राइट? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से यहाँ दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ कितनी कम है, लाइक लेट से यहाँ पे 3 रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? और टर्म्स कितने हैं? 1 2 3। तो अगर मैं तीनों को इक्वली डिवाइड करूँ तो यहाँ पे -1 हो रहा है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस। तो ये भी सही अप्रोच है, ऐसे नहीं गलत है। बट मैं बोलता हूँ अगर आपका दिमाग नहीं चलता इतना, जैसे मेरा नहीं चलता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो समझो। यहाँ पे S9 मुझे गिवन है। S9 इज नथिंग बट, इफ आई राइट इन अ फॉर्मूला, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएंगी इस तरह से, दैट इज 9/2 2a प्लस 9 - 1 दैट इज 8d इज इक्वल टू 12। इफ आई सॉल्व इट फर्दर, मुझे यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 3 3 9, 3 4 12, राइट? एंड अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आई लेफ्ट विथ 3 इंटू a प्लस 4d इज इक्वल टू 4। इफ आई सॉल्व इट फर्दर आई विल गेट 3a प्लस 3 4 12d इज इक्वल टू 4। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। ये मैंने यहाँ से निकाला इसे सॉल्व करके। नेक्स्ट जो है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, फर्स्ट सॉल्व दिस हियर, तो ये मेरा बन जाएगा दैट इज 12/2 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 9। अगेन दिस शुड बी कैंसल्ड, दैट इज दिस 3 4 12, दिस इज 3 3 9। अगेन ये कैंसिल होगा, 4 2 तो यहाँ पे बचा 2। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4a प्लस 22d इज इक्वल टू 3। दिस शुड बी माई इक्वेशन 2। देखो मैं समझा रहा हूँ उससे धीरे धीरे है, बाकी इससे भी आप करोगे तो इट विल टेक यू अराउंड 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, 1 और यू कैन से 1 से 2 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो अगर देखो यहाँ पे, इफ आई सिंपली सी, यहाँ पे मेरे पास 12d है, यहाँ पे 22d है। अगर मैं इसे माइनस करूँ तो मेरे पास 10d आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे एवरेज, ओके माय मिस्टेक, मैंने एक गलती से एक मिस्टेक कर दिया। एवरेज ऑफ A1 और A12 जो है यहाँ पे A11 आएगा, ना कि A10। सो इट इज माई मिस्टेक, सॉरी। ये चेंज कर लो, कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि मिस्टेक कर दियो बार बार। तो गलती से हो जाता है मेरे से भी गलती। तो यहाँ पे A11 आएगा। कैसे मैंने देखा ये? 21 + 1 विच इज नथिंग बट 22, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो जो भी नंबर है वो क्या बनेगा? मिडिल नंबर, दैट शुड बी एवरेज। ओके, तो A11 एवरेज रहेगा। यू कैन सी, अगर मैं A11 की बात करूँ, A11 क्या होता है? A प्लस 10d, दिस इज वॉट A11। तो अगर मैं यहाँ 10d बनाना है तो मैं यहाँ सिंपली अगर मैं 22 में से 12 माइनस कर दूँ तो 10 बन जाएगा, यस। 4 में से 3 माइनस कर तो मुझे 10 मिल जाएगा, यस। तो व्हाट आई कैन डू सिंपली, मैं 2 - 1 कर दूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो हियर आई विल गेट a प्लस 10d विच इज इक्वल टू -1। -1 कैसे है समझ लो यार, फिर बोलना मत। 2 में से 1 माइनस किया तो 2 क्या है? इसकी वैल्यू है 3 -4। सो हियर यू विल गेट -1। मिल गया मुझे एवरेज। यहाँ पे ये था 21 इंटू एवरेज। A11 की वैल्यू क्या आ गई? दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस, ओके, जो कि है -1। व्हेन यू सॉल्व इट फर्दर यू विल गेट -21। तो S21 की वैल्यू जो है वो है -21।
तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सोच सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा सीधा सीधा ये लगा लो, इतना दिमाग लगा लो, यू विल गेट योर आंसर इजीली. Here it is given that the sum of first five consecutive odd numbers a1 to a5 is 75. What is the sum of five consecutive even numbers whose smallest number is same as 2 time of a5? तो पहले समझो इसे कि consecutive odd terms क्या होते हैं, consecutive even terms क्या होते हैं, बिकॉज मैंने अभी तक नहीं बताया आपको कि ये क्या होते हैं. तो हमेशा याद रखना, जब मैं odd terms की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये होगा कि कुछ वैल्यू इस तरह से है, 1 3 5 7, दिस इज व्हाट द ऑड टर्म्स. बट मुझे यहाँ पे तो गिवन नहीं है ना कि वो ऑड है या इवन, तो मैं कैसे लिखूं, मतलब कंसिडर करूंगा. तो इसे नोट कर लो. मोस्टली आपको 3 5 ऐसे ही पूछा जाएगा. तो अगर आपको पूछा बोला गया थ्री टर्म्स, और यू कैन से थ्री टर्म्स है और थ्री ऑड टर्म्स है, तो आप जो वैल्यूज लोगे वो इस तरह से लेना है आपको. दैट इज a - d. ओके, ऑड टर्म्स के लिए जनरल के लिए बता रहा हूँ. अगर थ्री टर्म्स का अगर कहा है आपको तो आप इस तरह से ले सकते हो. दैट इज a - d, a एंड a+d. ये आपने तीन टर्म्स लिया है. ठीक है, इन जनरल बता रहा हूँ मैं, इट इज नॉट फॉर ऑड इवन, वो मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में. एंड व्हेन इट कम टू फोर टर्म्स, अगर आपको कहा गया है फोर टर्म्स अगर है, तो आप फोर टर्म्स किस तरह से लोगे, यू कैन टेक दिस दोस फोर टर्म्स लाइक दिस: a - 3d, a - d, then a+d, then a+3d. Okay, the fourth term should be a+3d. अब मैंने इस तरह से टर्म क्यों ले रहा हूँ, यू कैन सी, अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो मेरा डी जो है कैंसिल हो जा रहा है. यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये डी कैंसिल हो जाएगा, ये डी कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं ऐड करूंगा तो एट दी एंड मुझे ए की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. इसलिए हम इस तरह के टर्म लेते हैं कि हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाए, ना कि हमें बाद में इशू आए कि हमने टर्म्स तो ले लिया, दैट इज a - d, a+d, बाद में हम फंस जाए. एंड आप कहोगे कि ये क्यों ले रहे हैं हम, हमें तो पता है ना कि इस तरह से फॉर्मेट बनता है: a+d, a+2d, a+3d. ये फॉर्मेट बनता है, तो हम ऐसे क्यों ले रहे हैं. तो उसका भी कारण वही था अभी जो मैंने जस्ट बताया, कि आप जब इसे ऐड करोगे तो आपको इजी जाए. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये टर्म्स हैं, इसके पहले भी तो कुछ टर्म रहे होगे ना. इसके पहले का जो टर्म होगा क्या होगा, a - d होगा. इसके पहले का जो होगा क्या होगा, वो a - 2d होगा. राइट. तो बस हम यही कर रहे हैं. एंड सिमिलरली अगर आपको फाइव टर्म्स कहा जाए, इफ दे हैव टोल्ड फाइव टर्म्स, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप लोगे a - 2d, a - d, a के कॉमा लगा लो, नहीं तो आप बोलेंगे क्या कर रहा है ये, a+d, a+2d. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम है. इनके बीच में देखो डिफरेंस. ठीक है. तो यही है, यहाँ पे जो लिखा मैंने वही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है. फोर टर्म्स है तो आपको ऐसे लेना है, थ्री टर्म्स है तो आपको इस तरह से लेना है, फाइव टर्म्स है तो आपको इस तरह से लेना है. ओके. अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन क्या रहा है आपको, इफ यू रीड केयरफुली, जो फर्स्ट फाइव टर्म्स है a1 to a5, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा आपका a1 होगा, सेकंड टर्म होगा a2 होगा, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 75. ठीक है, इनका जो सम है वो क्या है 75. तो अगर मैं बात करूँ सम की, तो मैं यहाँ पे इसका यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और दूसरा तरीका भी आता है कैसे सॉल्व करना है. तो इसका यूज अभी के लिए नहीं करते, शायद हो जाए, लेट्स सी. मैंने अभी आपको बताया था कि सम का फॉर्मूला एक होता है, दैट इज n इंटू एवरेज. अब यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पांच टर्म है तो एवरेज क्या होगा, a3 शुड बी एवरेज. राइट. अगर a3 एवरेज है, एंड n क्या है, n इज 5, एंड n इज क्या है 5, तो मैं लिख सकता हूँ 5 into a3 इज नथिंग बट 75. सिंपली कैंसिल, a3 की वैल्यू आ गई आपकी, द a3 वैल्यू इज 15. 5 1 5, 5 5 25. तो a3 की वैल्यू मुझे 15 मिल गई यहाँ से. एंड वंस आई गॉट वैल्यू फॉर a3,
क्या मैं बाकी वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं? यू कैन से कि ये कैसे निकाल सकते हो आप? पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली पॉसिबल तो नहीं है। बट अगर मैं इसे फॉर्मेट में डाल दूँ, इससे मैं कहूँ कि दीज आर द फाइव टर्म्स ऑफ माई एपी, अगर मैं यही कंसिडर कर लूँ दीज आर द माई फाइव टर्म्स ऑफ एपी, तो मुझे ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई, बट स्टिल आई हैवंट रिसीव्ड अ डी, द वैल्यू फॉर डी। बट बिकॉज, तो बिकॉज मुझे यहाँ पे गिवन है कि दीज आर द फाइव ऑड कंसेक्टिव टर्म्स, तो मैं ये कह सकता हूँ इसके पहले जो ऑड टर्म रहा होगा वो क्या होगा? ये 13 रहा होगा। इसके पहले क्या रहा होगा? 11 रहा होगा। इसके बाद में क्या आएगा? 17 आएंगे। इसके बाद में क्या आएगा? 19। वो आप कह सकते हो कि ये कैसे ले लिया? यार कॉन्सेक्टिव का मतलब ही होता है कि उसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला जो टर्म होता है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं, और बिकॉज ऑड का है तो मैं 15 के बाद जो ऑड टर्म है 17 ही मैं कंसिडर करूंगा, ना कि कोई और सा टर्म। राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो वैल्यू आएंगी ये 19 आ जाएगी। आप ये वाला टर्म्स यूज कर सकते हो, बट इसका कोई यूज नहीं है। मैं सोचा था इसे यूज करने का, बट वो लेंदी हो जाएगा और उसका नीड भी नहीं है। अगर आप लॉजिकली भी सोचो, और अगर आप बोलेंगे कि अभी भी आप पे विश्वास नहीं है, तो आप कुछ नहीं, इसे ऐड कर दो। ऐड कर लो, चेक कर लो, आंसर क्या आ रहा है? 75। इट मीन्स हमने जो यूज किया वो सही है। आपको अब क्या करना है? आपको ये पूछा था? नो, दे आस्क्ड यू कि आपको बताना है सम ऑफ द फाइव consecutive इवन टर्म्स, जिसका स्मॉलेस्ट टर्म जो है वो क्या है? 2 टाइम ऑफ A5। 2 टाइम ऑफ A5 मतलब 19 का डबल। 19 का डबल इज 38। 30 इज द स्मॉलेस्ट टर्म। इसका कॉन्सेक्टिव टर्म्स अब कौन कौन से होंगे? 38 के जस्ट बाद वाला इवन नंबर, दैट इज 40। 40 के जस्ट बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? दैट इज 42। देन 44, देन 46, देन 48। तो मुझे कितने टर्म का पूछा है? 5 टर्म का ही पूछा है। एट, तो दीज आर द 5 टर्म्स। ओके, 6 हो गए क्या? या माय बैड। दीज आर द 5 टर्म्स। आपको इसका सम निकालना है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार आपको कैसे पता चल गई है? यार क्वेश्चन सही से पढ़ो आप। स्मॉलेस्ट टर्म अगर 38 है तो इसके बाद वाले ही 5 पूछा होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो उसके बाद के ऐड करूंगा तभी तो सम बनेगा। तो व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट 210 एज योर आंसर। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको 210 आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। देखो एपी टफ नहीं है। एपी मतलब कुछ क्वेश्चंस बन जाते टफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप एपी के इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली इन द सेंस अगर आप मेथड सही से यूज कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे काइंड ऑफ क्वेश्चन देख लो। तो इन दिस वीडियो ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ बच जाएंगे तो हम जब इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चन लाएंगे उसमें हम कवर कर देंगे। ओके। एंड फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप सोचोगे कि वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है? तो मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या हुआ था फर्स्ट टाइम? जो रिकॉर्डिंग था पता नहीं कहाँ मिस हो गया, कहाँ चला गया, हैव नो आइडिया। सेकेंड टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, सो ड्यू टू सम रीजन ऑडियो उसमें नहीं आया बराबर। सो दिस इज माई थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग। तो इसलिए थोड़ा लेट हो चुका, थोड़ा मतलब बहुत लेट हो चुका है। सो आई एम रियली सॉरी, बट माफ कर दो। देख लो रिकॉर्डिंग, और आगे के जो भी है हम सब कुछ कवर करवाएंगे। हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट कवर करवा देंगे। सो ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने ये भी देख लिया ना, यू आर इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट से जितने भी कैट के क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूँ कि आप बहुत वंडर कर दोगे, मुझे नहीं पता, आप कर भी दो शायद अच्छे से प्रैक्टिस करो तो, बट एटलीस्ट आप 90% प्लस तो आप जा सकते हो इस सीरीज से भी, लाइक जो हम अपकमिंग सीरीज आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस करना है तो QA69 जो है बुकलेट, वो हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो QA69 बुकलेट को आप चेक कर लो। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब हाईली यू कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर। तो ये तो सॉल्व करके जाओ, तो आपके लिए बेनिफिट है। क्या पता आप इससे 99 तक चले जाओ, और मे बी मोर देन 99, 100 भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस। In this question, it is given to if the ratio of sum of n terms of two APs, मतलब दो APs जो इसका रेशियो, उसके nth टर्म का सम जो है उसका रेशियो आपको गिवन है। मतलब लेट से दो एपी है, तो एक एपी का सम Sn होगा,
दूसरे एपी का सम अगर मैं कहूँ एस एन डैश कर लो, ठीक है। या फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ इसे, एस को कुछ और लिख लेते हम, लेट्स से एस एम कर लो, ठीक है। एक को मान लो एक एन टर्म्स एक एम टर्म्स, सो दैट हमें क्लियर रहे, या फिर एस एन डैश ही ठीक था। समझ में आ रहा है, दो अलग अलग टर्म्स है। तो ये दो सम, मतलब जो सम है दो अलग अलग एपीज के, ये एपी अलग है, ये एपी अलग है। अभी तक हमने सेम एपी किए थे, बट यहाँ पे अलग अलग एपीज है। इनका जो रेशियो है ये आपको इस तरह से गिवन है, इट इज 2n+3 अपॉन 5n-17। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू यू। आपको पूछा क्या है उसने? आपको पूछा है ट्वेल्थ टर्म ऑफ द एपी। व्हाट आस्क्ड यू? द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द एपी। तो कैसे निकालना है ट्वेल्थ टर्म? मतलब उसका भी रेशियो निकालना है, ऐसे नहीं कि ऐसे कि आपको ट्वेल्थ टर्म ही निकालना है। यू हैव टू फाइंड रेशियो। तो ये बहुत, दिस इज अ कैट क्वेश्चन बाय द वे। ये कैट क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके मॉक्स में भी दिखेंगे आपको, इवन कैट में भी आते रहते हैं, तो शायद इस बार आ जाए। तो कैसे करना है इसे सॉल्व? सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? जो एस एन का बेसिक फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज वॉट द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब सिमिलरली जिसका फॉर्मूला होगा ये भी कैसा होगा? दैट इज n/2। नाउ यू कैन से कि n/2 ही क्यों आ रहा है? यार n तो सेम है ना, जो इसका n होगा वही n यहाँ पे भी होगा। लेट्स से अगर मैं 12 टर्म की बात कर रहा हूँ, चलो 12 तो ऑलरेडी है, मैं 15 टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये भी 15 है तो ये भी 15 होगा। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ वन एपी, दिस इज सम ऑफ 15 टर्म ऑफ सेकंड एपी, इसलिए n कॉमन आ जाएगा। एंड इट इज 2a। नाउ इन दिस केस यहाँ पे तो a है, बट ये a मुझे नहीं पता, तो आई विल टेक दिस a डैश, ठीक है। प्लस n-1 इंटू, बिकॉज मुझे डिफरेंस भी नहीं पता तो मैं इसका डिफरेंस क्या ले लूंगा, d डैश। इट इज नथिंग बट 2n+3 डिवाइडेड बाय 5n-17। n/2 n/2 कैंसल्ड, राइट। अब क्या बच रहा है? अब या अगर मैं यहाँ से इससे मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर दूं, यहाँ पे इस टर्म को मैं क्या कर दिया, इफ आई से कि इफ आई डिवाइड दिस कंप्लीट टर्म बाय 2, अगर मैं इसे पूरे टर्म को डिवाइड को 2 से कर दूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएंगी? आई विल गेट दिस वैल्यू, इट इज a प्लस n-1/2 डी अपॉन, सिमिलरली यहाँ भी मैंने इसे भी डिवाइड कर दिया कम्प्लीटली 2 से, हियर ऑल्सो आई विल गेट a प्लस n-1/2, दैट इज d। ओके, ये a डैश है, ये d डैश है, इज इक्वल टू 2n+3 अपॉन 5n-17। ओके, नाउ ये जो टर्म है मुझे क्या चाहिए, n-1/2। ये टर्म मुझे क्या चाहिए? दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू, मुझे 12 निकालना है, तो अगर मैं 12 की बात करूँ तो मुझे t12 अपॉन t-12 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म इस तरह से बच जाएगा, दैट इज a प्लस 11d अपॉन a डैश प्लस 11d डैश। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 11 चाहिए, मतलब मुझे n-1/2, इसकी वैल्यू क्या चाहिए? 11। तो व्हाट शुड आई पुट n इन दिस प्लेस सो दैट आई विल गेट 11? कैसे मुझे मिलेगा? तो यहीं से सॉल्व करके मुझे n मिल जाएगा, दैट इज n इज नथिंग बट 22 + 1, सो n शुड बी 23। तो अगर मैं n 23 डाल दूँ तो मुझे यही जो वैल्यू मिल जाएंगी, कैसे मिल जाएंगी? दिस वैल्यू बिकम a11 प्लस d। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे n की वैल्यू 22 डाल दूंगा, सॉरी 23 डाल दूंगा। सो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 23, when I put n is equal to 23, what I will get? I will get a plus 11d upon a dash plus 11d dash is equal to 2 time of, this will become, n की जगह क्या आ जाएगा, 23 plus 3 upon 5 into 23 minus 17. If you solve it further, what you will get? You will get 2 into 23, that is 46, 46 plus 3, that is 49. So this value become 49. Here, when you multiply 23 into 5, you will get 115, this should be minus 17, so minus 17, 98। ये वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी? 98। इज इट मल्टीपल? 98 डिवाइड हो रहा है 49 से? यस इट इज, ये देख सकते हो आप, दिस इज माय
49 वन जा, दिस इज माई 49 टू जा, तो ये बन जाएगा 1/2। तो माई रेशियो फॉर दिस इज दैट इज 1/2। दिस इज वॉट योर आंसर। होप यू गॉट इट कि कैसे आया ये। तो अगर इस ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। वो आप सोचोगे इतना मैं करूँ क्यों। यस यू कैन, इतना करना ही नहीं है, इतना आपको करना ही नहीं है। बट हो सकता है कभी आप फंस जाओ, इसलिए मैंने आपको मेथड बताया। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो अरेंजमेंट बस इतना रहेगा। आपको करना क्या है, सॉल्व टू नो मोमेंट। ओके शिट। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये सॉल्व कर लेना है कि यहाँ पे मुझे 12 टर्म है। तो अगर मुझे यहाँ पे 12 टर्म है तो व्हाट आई नीड हियर, आई नीड a प्लस 11d। दिस इज व्हाट अ 12 टर्म इज। तो मुझे यहाँ पे 11 चाहिए, तो सिंपली n-1/2 इज इक्वल टू 11 करना है। यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएंगे 23। इस 23 को डायरेक्टली आपको यहाँ डाल देना है एंड यू विल गेट योर रेशियो। दैट शुड बी योर आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आपको डाउट है, इट्स वेरी डाउटफुल, समटाइम मुझे भी डाउट हो जाता है, इवन तो मैंने प्रैक्टिस की है फिर भी मुझे डाउट हो जाता है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मैं लगेगा 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा, मैं इतना सॉल्व कर लूंगा और क्या है, मेरी संतुष्टि के लिए। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस इफ यू वांट। सो सो फार 10th क्वेश्चन तक आ गए हम। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये हमें निकालना है, गिवन क्या है। इफ इट इज नोन that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is equal to 2 to 5, and this is the term of the first 24 APs a1 to a24। मुझे ये गिवन है, मुझे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालने हैं। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आएगा कि करना क्या है। तो यू कैन सी दिस कि अगर मैं a1 की बात करूँ और a24, इनका अगर मैं एवरेज निकालूँ, तो अगर मैं सम पूछा है S24, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ ना, दैट इज n इंटू एवरेज। ओके, सो n क्या आ जाएगा इस केस में, n शुड बी 24। मुझे बस ढूंढना है कि एवरेज वाला कौन सा वैल्यू आएगा, जो एवरेज यहाँ पे आना चाहिए, ये कौन सा टर्म है। दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। तो 24 + 1 दैट इज 25। तो 25/2 करना पड़ेगा। ओके, 25/2 दैट शुड बी माई एवरेज। मतलब मतलब जो मिडिल टर्म दो टर्म है वो मेरा एवरेज होना चाहिए, क्योंकि 25 तो ऑड है। ऑड है, मुझे मिडिल टू टर्म की एवरेज चाहिए। मतलब क्या हो सकता है मिडिल टू टर्म, दैट इज 12 + 13। दैट इज 12 + 13, यही हो सकता है मिडिल टू टर्म्स, राइट। तो इन दिस केस यहाँ पे देखते क्या सीन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये दोनों जो वैल्यू है a1 प्लस a25, ये बन जा रहा है मेरा। मैं इसे बोल सकता है एवरेज जो होगा उसका, ये जिसकी जो भी वैल्यू आएंगी इज नथिंग बट एवरेज। ओके, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो लेट्स इनसे कुछ वैल्यू आया x, इफ आई डू x/2, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा एवरेज। यहाँ से भी अगर मैं कुछ निकाल लूँ इन दोनों का सम भी, देखो तो ये भी 25 बन रहा है, मतलब इसकी वैल्यू भी x आएंगी। अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो एवरेज मिल जाएगा। ये भी अगर वैल्यू देखो यहाँ पे 25 बन रहा है, मतलब x से भी x/2 कर तो एवरेज मिल जाएगा। मतलब एट दी एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये टू टाइम ऑफ एवरेज है। ये क्या है, टू टाइम ऑफ एवरेज है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ कि टू टाइम ऑफ एक्स, बिकॉज ये दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, टू टाइम ऑफ एक्स आ जाएंगी, बिकॉज एवरेज क्या है मेरा एक्स है। होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है क्योंकि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ओके चलो, ऐसे नहीं समझ रहा है तो एक और चीज मैं कर सकता हूँ इसे समझाने के लिए। द बेटर वे इज, लेट्स से इन दोनों का जो सम होगा, एवरेज भूल जाओ अभी के लिए, सम इन दोनों का जो आएगा उसको डिवाइड करने पे एवरेज आएगा, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है। एंड ये लॉजिकली अगर सेम लॉजिक से जाएंगे तो इनका भी एवरेज सेम आएगा, इनका भी एवरेज सेम आएगा, बिकॉज दो नंबर का एवरेज है। ये जो वैल्यू आएगा ए आएगा, ये भी ए आएगा, ये भी ए आएगा। बट ए इज व्हाट, अगर मैं बोलूँ एक्स इज द एवरेज, तो ए क्या आना चाहिए, ए इज नथिंग बट टू टाइम ऑफ एक्स। ए क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने टू टाइम ऑफ एक्स ले लिया। एंड बिकॉज कितने टर्म्स है ये मेरे, मतलब कितनी जोड़ी बन रही, एक दो तीन, तीन जोड़ी तो थ्री इज नथिंग बट 225। तो अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, 225/6। दिस इज वॉट एक्स। तो अब मैं एक्स आ गया है, व्हाट इज माई एवरेज, माई एवरेज इज एक्स। मैंने अभी कंसिडर किया था एक्स इज माई एवरेज। तो यहाँ पे एक्स अगर मैं लिख लूँ तो इट इज नथिंग बट 24 × 225/6। तो 6 से आप कैंसिल कर दो, 6 4 × 24,
एंड इसे आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू विल गेट दैट इज 225 इंटू 4। तो 225 टू जो होता है 450, 450 एंड इट इज 900। दिस इज व्हाट योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप ये लॉजिक से कर सकते हो। शायद हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट आए, तो एक बार आप फिर से इसे वापस से रिप्ले करके देख लो, समझ जाएगा। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके और एक दो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करवा दूँ। दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट थ्री टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 27। मतलब तीन टर्म एपी में, अभी जस्ट मैंने बताया था थ्री टर्म्स एपी में, तो क्या करना है आपको, जब भी थ्री टर्म्स एपी में तो हमें क्या लेना है, a minus d, this is my first term, a this is my second term, and a plus d this is my third term। तो इनका जो सम है वो क्या है, गिवन 27 है, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। नाउ यू कैन सी हाउ इट विल बी वेरी इजी टू मी। यहाँ से डी डी कैंसिल हो गया, यहाँ डायरेक्टली मुझे मिल गया 3a इज इक्वल टू 27। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई, दिस इज नथिंग बट 3 9s आर 27, तो a की वैल्यू 9 आ गई। सिंपल हुआ नहीं, हो गया। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज 65। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब कि एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे जो बैठा है, ठीक है, एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट वाला, उससे बोलते हैं एक्सट्रीम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये है एक्सट्रीम, मतलब आखिरी में ये है, तो इन दोनों का जो टर्म प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स दैट इज ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज नथिंग बट 65। इनका जो मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 65 आएंगी। एंड दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो नोट कर लो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, आपको याद होना चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई विल गेट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। नाउ ए स्क्वायर, द वैल्यू फॉर ए इज गिवन टू, लाइक ये मैंने निकाल चुका ऑलरेडी, तो ए इज नथिंग बट 9, तो 9 स्क्वायर दैट इज 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सो फ्रॉम हियर मैं लिख सकता हूँ दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 65, राइट। अब 81 माइनस 65 जो आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर है, मुझे डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, द माई वैल्यू फॉर डी इज नथिंग बट प्लस माइनस 4। वाई प्लस माइनस, हो सकता है जो 16 आया हो ये -4 का स्क्वायर हो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 16 आती है, या तो ये 4 का स्क्वायर हो सकता है तो इसका वैल्यू भी 16 आता है, राइट। नाउ व्हाट दे आस्क्ड यू, दे आस्क्ड यू लार्जेस्ट टर्म अमंग द थ्री टर्म्स। ओके, लार्जेस्ट टर्म अमंग, चलो पहले तीन थ्री टर्म निकाले थे। इन माई केस वन जिसमें मेरा डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, +4 होगा, और मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी 9। तो इन दिस केस व्हाट आई विल गेट, द फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी दैट इज 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 क्या होता है, दैट इज 5। दूसरा टर्म हो गया आपका 9, अगेन 9 प्लस 4 दैट इज 13। तो इन दिस केस जो लार्जेस्ट टर्म है वो क्या है, 13 हो गया। केस टू, ओके दिस इज माई केस वन एंड दिस इज माई केस टू। केस टू की बात करें, यहाँ पे डी मेरा क्या है, डी है मेरा -4, और ए जो है मेरा दिस शुड बी 9, ओके, ए क्या है 9। अब इस केस में देख लेते हैं, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ए माइनस दैट इज 13 एंड ए इज नथिंग बट हियर दैट इज 9 एंड ए प्लस डी, इसको अगर ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अगेन लार्जेस्ट टर्म पूछा है तीन में से, तो अगेन 13 ही होगा। तो एनीवे कैसे भी करो, लार्जेस्ट में 13 ही आना है। सो होप इट इज क्लियर टू यू, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ गिवन क्या है देखो, यू हैव गिवन, दे हैव गिवन टू यू टू सीरीज, ओके, दो सीक्वेंस हैं, जैसे कि ये देख लिख सकते हो, दैट इज 10 13 16 19 एंड बोथ आर एपी सीरीज, ओके, बोथ आर एपी सीरीज, ये भी एपी है, ये भी एपी है। अब इनमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंस। मतलब ऐसे टर्म आपको मतलब टर्म्स ढूंढने, मतलब जो कॉमन हो, तो आप कैलकुलेट थोड़ी करते बैठे हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 19, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। कभी कभी ये भी नहीं दिखेगा, आपको निकालना पड़ेगा आगे और ढूंढना पड़ेगा।
बट यहाँ पे इट इज क्लियरली विजिबल दैट इज 19 इज द कॉमन टर्म। तो अब सॉल्व कैसे करना है, तो समझो पहले। नाउ अगर मैं फर्स्ट एपी सीरीज की बात करूँ तो इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 3, +3 यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, माइट बी पेन थोड़ा ये है, लेट मी इंक्रीज द पेन साइज 3 कर लो। तो ये दिख रहा है यहाँ पे 3, यहाँ से यहाँ भी जाऊंगे तो आपको 3 दिखेगा, यहाँ से यहाँ भी आपको 3 दिखेगा, राइट। इस सीरीज में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये 4 है, ये 4 है, मतलब सीरीज तो अलग है, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि टर्म बताओ जो दोनों में कॉमन हो, तो पहला टर्म तो आपको डायरेक्टली 19 दिख रहा है, मतलब मेरा जो फर्स्ट टर्म है तो मुझे डायरेक्टली मिल गया 19। दूसरा टर्म कौन सा है, आई डोंट नो। तो अब क्या आप ये पूरे नंबर लिखते बैठोगे फिर उसे कैलकुलेट करोगे, नो, ऐसा नहीं करना है। कैट दे रहे हो भाई, 40 मिनट तो है ही आपके पास। इवन तो कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप पूरे सॉल्व करते बैठो इतने टाइम तक। करना कैसा है देखो, हमें एक नया सीरीज निकालना है, ऐसे सीरीज जिसमें ये दोनों सीरीज की मतलब जो कॉमन टर्म्स वो आ जाए। उसे ही फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया, तो यू हैव टू फर्स्ट, द स्टेप इज स्टेप 1, आपको कॉमन टर्म निकालना है। दिस इज वर स्टेप, यहाँ पे स्टेप्स लिख देते हैं कि आपको पता रहे क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। सो योर स्टेप 1 इज यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म दैट इज A1। A1 निकाल लिया, स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 इज आपको डिफरेंस निकालना है। एक बार ये दोनों निकाल लिया, काम आपका हो गया, आपका काम हो गया। तब डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस सीरीज का डिफरेंस क्या है, +3 है, इस सीरीज का डिफरेंस क्या है, +4 है। तो अब मुझे नया जो सीरीज आने वाला है उसका डिफरेंस क्या होगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट, वो जो डिफरेंस आने वाला है दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज टू। इन दोनों का क्या हो जाएंगे, एलसीएम, दैट इज 3, 4। इनका जब एलसीएम निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगे दैट इज 12। एलसीएम ऑफ दिस टू इज 12। तो डिफरेंस क्या मिल गया आपको, 12। आपने A1 निकाल लिया, यहाँ पे इस कंडीशन में A1 आपका ये है, एंड डिफरेंस जो है आपको वो भी आपने निकाल चुके हो, दैट इज 12। आपको क्या पूछा है, कॉमन टर्म्स। आपको कॉमन टर्म पूछा है तो अब देखना, अब यहाँ पे देखो दोनों सीरीज में कि जो लास्ट टर्म है उसमें छोटा टर्म कौन सा है। स्टेप 3 इज यू हैव टू कंसिडर द स्मॉलेस्ट लास्ट टर्म। ओके, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं बोल सकते, यू कैन से माई, या स्मॉलेस्ट बोल दे यार, जो भी समझ लो, ठीक है, स्मॉल लास्ट टर्म। तो अगर मैं स्मॉल लास्ट टर्म की बात करूँ, ये तो बड़ा वाला टर्म है, ये छोटा दिख रहा है, तो हमें छोटा ही कंसिडर करना है। क्यों छोटा करना है, क्योंकि अगर हम दो सीरीज की बात कर रहे हो, कॉमन टर्म ढूंढ रहे हो, तो क्या इस सीरीज में आप 109 के आगे देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। तो अगर आप 109 के आगे आप देख ही नहीं सकते हो, तो आपको बड़ा तो कंसिडर करना ही नहीं है, आपको तो 109, आपकी गाड़ी तो यहीं पर रुक जानी चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको स्मॉलेस्ट लास्ट टर्म लेना है, एंड दिस शुड बी योर, लेट्स कंसिडर दिस शुड बी an। तो आपको an की वैल्यू क्या मिल गई, 109। ये एक्यूरेट an की वैल्यू नहीं है, बट हमने इसे अज्यूम किया है, ठीक है, अज्यूम किया है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट दे आस्क्ड यू नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, मतलब आपको n निकालना है। अब क्या निकालना है, n निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, tn का फॉर्मूला लगा लो, और an का फॉर्मूला वट एवर यू कैन से, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 × d। an की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 109, इज इक्वल टू a प्लस, ओके, a की वैल्यू भी आपके पास है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, दैट इज 19, प्लस n-1 × d, d की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी, दैट इज 12। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, ये यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 19 इज इक्वल टू n-1 × 12। सो ये हो जाएगा 90/12 इज इक्वल टू n-1। 12 से अगर मैं डिवाइड कर तो इट विल बिकम समथिंग अराउंड 7 पॉइंट, ओके, पॉइंट के बाद जो भी आ रहा है इग्नोर इट, कुछ काम का नहीं है मेरे। तो 7 समथिंग आ रहा है, ओके, अप्रोक्सीमेट 7 इज इक्वल टू n-1। मुझे n चाहिए, दैट इज नथिंग बट 8। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से, दैट इज वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 8। तो कितने कॉमन टर्म्स है इस सीरीज, इन दोनों सीरीज, मतलब अगर कंसिडर करें इन दोनों सीक्वेंस को, तो दैट इज 8 कॉमन टर्म्स। कहाँ तक, टिल 109 तक। तो दिस इज व्हाट हाउ यू शुड सॉल्व। अगर अगर आपको किसी केस में हो सकता है कि आप ये वैल्यू ढूंढ ना पाओ, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या कर सकते हो आप, लेट्स सी हियर। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे रेस करके आपको समझाना चाहता हूँ एक और चीज। ओके, गिव मी अ मोमेंट। सो लेट्स से अगर आप
जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ सीरीज में आप पता नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तो दिख रहा है ऑलरेडी 19 है, बट आप नहीं देख पा रहे हो, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आपको आगे निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आगे का टर्म निकालने जाऊँ, तो यहाँ पे +3 करके यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज 22। यहाँ पे +4 करूंगा तो दिस शुड बी माई 27। तो यहाँ पे निकालूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं पीछे जाऊंगा। मैं ट्राई कर सकता हूँ पीछे जाके, अगर मैं यहाँ से 3 पीछे चले जाऊँ, यहाँ +3 होता है, पीछे आऊंगा तो -3 करना होगा। तो हियर आई विल गेट 7। यू कैन सी +3 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं -4 कर दूँ तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। तो देख सकते हो आप, कॉमन टर्म यहाँ पे दिख गया है। बट क्या मुझे ये टर्म चाहिए? नहीं, ये टर्म मुझे नहीं चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट टेक 7 प्लस डिफरेंस तो मैं निकाल सकता हूँ ना एलसीएम से, तो डिफरेंस मेरा आ जाएगा 12। तो 7 + 12, जैसे ही मैं ये करूंगा आई विल गेट माई फर्स्ट टर्म, एंड दिस शुड बी माई लाइक A1। होप इट इज क्लियर कि कैसे करना है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, लेट से यहाँ 9 तो दिख रहा था, अगर नहीं देख पा रहे हो कि 9 आपको गिवन ही ना हो, तो उस केस में क्या करोगे, आप ऐसे करके बैकवर्ड भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे आप निकाल पाओ। यू कैन ट्राई दैट मैथड। होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन देखो, ये कैट का क्वेश्चन है। ओके, कैट 2019 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं ना, मतलब ऐसे कुछ है। तो कैट का क्वेश्चन है, गिवन क्या है, इफ 2n+1 plus 2n+3 plus 2n+5 up to the 2n+47 is equal to 5280, then what is the value of 1 + 2 + 3, मतलब up to the n? ओके, up to the n। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये तो एपी पूछ लिया इसने, ये एक तरह से एस एन ही पूछ लिया है, राइट? लेट मी चेंज द पेन कलर। ये क्या किया, यहाँ पे एस एन की वैल्यू पूछ रहा है हमें। एस एन मुझे निकालना है, बट एन मुझे पता नहीं है। एन मुझे पता नहीं है, तो एन कैसे निकालूंगा? अब ये सीरीज देखो यहाँ पे, यहाँ से मुझे एन की वैल्यू निकालनी होगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड हियर। यहाँ देखो, यहाँ भी 2n+1 है, 2n+3 है, 2n+5, यू कैन सी ये 1 और 3, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इट मीन जो नेक्स्ट टर्म आना चाहिए, व्हाट इट शुड बी, नेक्स्ट टर्म ऑड नंबर है, यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से तो क्लियर है, जो मेरा एन है यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे निकाल सकता हूँ? तो देख लो, दिस इज नथिंग बट, मैं 2n को कॉमन ले लूँ। इफ आई टुक 2n एज अ कॉमन, बट बिफोर वी गो फॉर 2n, लेट्स सी हियर। ये मेरी सीरीज है 1, 3, 5, देन नेक्स्ट शुड बी 7 up to the 47। इन दिस सीरीज व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड माय वैल्यू फॉर n। पहले यहाँ से n निकालो कि ये कितने नंबर है, पहले ये तो कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर्स है? इफ आई कैलकुलेट दिस, कैसे निकालना होगा? लास्ट टर्म दैट इज फॉर्मूला इज tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे tn क्या है, 47 इज इक्वल टू व्हाट इज माई a, दैट इज 1, प्लस n-1, व्हाट इज d, d इज 2। दिस इज नथिंग बट 46/2, दैट इज नथिंग बट 23, and 23 plus 1 that is 24। तो माई वैल्यू फॉर n इज 24। तो यहाँ से मुझे कितने टर्म्स मिल गए, 24 टर्म्स। तो इट इज क्लियर टू मी, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, तो 2n कितने टाइम आना चाहिए, ये 24 टाइम आना चाहिए, प्लस द सम ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 1 + 3 + 5 प्लस टिल व्हाट, टिल 47। ओके, इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 5280, राइट? यही होना चाहिए, क्योंकि 2n जो है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी कितने बार है, 1 2 3 अप टू कितना, 24 टाइम आना चाहिए। सो फर्दर सॉल्विंग दिस, व्हाट आई विल गेट हियर, यहाँ पे मुझे 48n मिल जाएगा। 48n प्लस एडिंग दिस वैल्यू, सम ऑफ दिस टर्म है, तो टोटल टर्म आई नो ऑलरेडी, दैट इज 24/2 इंटू, ओके व्हाट आई कैन डू सिंपली, 24 को यहाँ पे, ओके लेट इट बी 24, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, is equal to 5280। Here that is 48 and plus this value become 12 into this value is 48 is equal to 5280। Because यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48, I will try to divide this equation by 48, so I will get n plus 12 is equal to 5280 by 48।
तो 5280/48 करना है, तो इफ आई डिवाइड इट बाय 48 व्हाट आई विल गेट, तो 48 वंस आर 48, 48 वंस आर 48, यस। तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे, दैट इज n+12 इज इक्वल टू 110। देख सकते हो डायरेक्टली 48 वंस आर 48 आ रहा, रिमेनिंग 4 एंड हियर विल गेट 48 अगेन, तो 110 अगेन, 110 में से -12 कर दो, तो आई विल गेट माई n दैट इज इक्वल टू 98। तो n की वैल्यू क्या है, दैट इज 98। ए एन क्या था, व्हाट इज दिस n, दिस n इज नथिंग बट, इसका वैल्यू हम ढूंढ रहे थे कितने टर्म्स है इस सीरीज में, कितने टर्म्स है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मुझे क्या निकालना है, मुझे S98 की वैल्यू निकालना है। S98 फॉर विच सीरीज, माई सीरीज इज हियर 1 2 3 4 5 6 टिल 98 तक। इसका सम निकाल दो, सम क्या आना चाहिए, सम इज दैट इज S98 इज इक्वल टू 98/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 98। तो ये बन जाएगा आपका 98/2, दिस इज नथिंग बट 49 इंटू दिस वैल्यू इज नथिंग बट 99। तो 49 इंटू अगर मैं 100 कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे को, -49 कर दूँ तो ये बन जाना चाहिए 4851। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर ये समझा है तो एक मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, एंड उससे आपका आंसर कमेंट करना है, एंड आपको बताना है कि आपने क्या अप्रोच यूज़ किया है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। आप मुझे डायरेक्टली शॉर्ट में अप्रोच बताओ, ये सारे कैलकुलेशन मत बताओ, आपने क्या किया वो बताओ, कमेंट डाउन करो, ठीक है। एंड हियर, ओके, लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। So this is what your question is. You have to find sum of all two-digit number which when divided by 5 leaves a remainder 2। अब बोलेंगे यार आपने बोला कुछ, यहाँ कुछ दे दिया, देखो सेम ही बात हो रही है, थोड़ा आप लॉजिक समझो। आपको पूछा है क्या है, सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं 5 से किसी नंबर को डिवाइड करा, मतलब उसके लीव करना चाहिए 2 रिमाइंडर। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की, तो 5+2 होना चाहिए, दिस शुड बी व्हाट फर्स्ट टर्म, दैट इज 7। सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, 5, ये 5 वन जा था तो ये 5 टू जा हो जाना चाहिए, +2 इज नथिंग बट 12, राइट। ऐसे ही आपके बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे, 7 हो गया, 12 हो गया, यू कैन सी डिफरेंस आपको अपने आप मिल जाएगा। 5 3 आप कर लोगे यहाँ पे, +2, हियर विल गेट 15+2 दैट इज 17, गॉट इट। तो अब दिख रहा है आपको टर्म कुछ यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, अगर डिफरेंस मिल गया तो बहुत बढ़िया, यू कैन सी हियर द डिफरेंस इज 5, ठीक है। यहाँ भी आपका डिफरेंस कितना है, यहाँ भी डिफरेंस आपका है 5 का, तो इसके बाद का भी टर्म क्या होगा, उसका डिफरेंस भी क्या होगा, 5। तो अब आप तो ये निकाल ही सकते हो, दिस इज योर ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ए आपका 2 हो गया, डी आपका 5 हो गया, इतना काम तो मैंने ही कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि जो आपका ऑल टू डिजिट नंबर तक जाना है, आखिरी का टू डिजिट नंबर जो होगा वो आपको निकालना है, दैट इज 5 × n+2, दिस शुड बी समथिंग दैट इज टू डिजिट नंबर, इसकी वैल्यू बताना है। तो लॉजिकल है, अगर आप क्वेश्चन देख के डरोगे तो आपको लगेगा क्या है, बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन है, यू कैन सी हियर, यहाँ भी तो यही कह रहा था, 2n+1 2n+3, बस यहाँ पे था कि ये 1 2 1 3 5 ऐसा हो गया, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आपका 2 2 है। सो या थोड़ा सा सिमिलर है। सो कमेंट डाउन द आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ओके, सो हियर आई एम डन विथ, वी आर डन विथ एपी। आप बोलें कितनी जल्दी, हाँ इतनी जल्दी इसलिए बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंट हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी है जो शायद मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, एंड मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में किया था उसे कवर, बट अभी मैं वापस नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे इंपॉर्टेंट सीरीज में लाना चाहता हूँ। ओके, तो आप यहाँ से ये कवर कर लेना क्वेश्चंस को, एंड दोज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से भी आपने जो भी लर्निंग ली है उसे एक एक आप नोटबुक में कंपाइल कर सकते हो, कुछ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन या कुछ लगता है आपको रिपीट करना चाहिए, इसे रिवाइज करना है, यू कैन इवन दो मार्क डाउन समथिंग, आप एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लो,
जहाँ आप सेशन का लिंक और टाइमिंग डाल दो, सो दैट आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके उसे रिवाइज कर सको। और यू कैन सिंपली मेक अ कॉपी। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे कर लो। तो ये है। एंड या आज के लिए सिर्फ एपी ही इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं ट्राई करूंगा जीपी एंड एचपी दोनों कवर करने का। एंड उसके नेक्स्ट सेशन में आई विल कवर एजीपी प्लस मिसलेनियस सीरीज। शायद मैं मिसलेनियस पूरा ना करवा पाऊँ वहाँ पे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर दिस टू थिंग। ओके। आई होप यू लाइक द सेशन। कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लग रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद मैंने वैसे ही अपलोड किया है। स्टिल बता दो मुझे। एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड डे। अच्छे से प्रिपेयर करो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फालतू के क्वेश्चन में मत जाओ। जो इंपॉर्टेंट है उतना करो। कैट पी वाई क्यूज सॉल्व करो। दैट इज वॉट आई विल रिकमेंड। कैट पी वाई क्यूज कर लो, मॉक्स कर लो। एंड लास्ट वॉज 69 सीरीज, अगर कुछ करने का मन हो तो क्यू ए 69 कर लो। दैट इज वॉट आई वुड रिकमेंड टू यू। या, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। जय सिया राम।